Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are solving question number 6, last question of exercise 9.3. In exercise 9.3, we are solving the question by using a formula, that is midpoint formula. So, in question number, now we read question number 6, that is the vertices of a triangle are. Number 1 vertex is P, that is 4, 6. Second one is -2, -6. Third one is -8, 2. Show that the length of the line. Here I draw a triangle, that is PQR. Now we see what we have to show. Show that the length of the line segment joining the midpoints of the line segment. आपके पास लाइन सेगमेंट कौन सी है? पी आर, आर और क्यू आर. पी आर और क्यू आर के जो मिड पॉइंट्स हैं गिवन, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लेट वो है आपके पास, ये पॉइंट है M1 और वो पॉइंट है M2. क्योंकि ये है मिड पॉइंट पी आर का, इसलिए इसे मैंने M1 कहा है. क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे M2 कहा है. ये गिवन नहीं है बुक में, हमने अपनी तरफ से अज्यूम करना है. आप कोई और पॉइंट भी अज्यूम कर सकते हैं, ए और बी भी कर सकते हैं अज्यूम. तो इज क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट कौन सी है? M1, M2. ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. दूसरी लाइन सेगमेंट कौन सी है? पी आर और क्यू आर. इसके मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है. उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? 1/2 पी क्यू के इक्वल है. इट मीन्स इस पी क्यू के हाफ है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे M1, M2. फिर हमने लेंथ फाइंड करनी है किसकी? M1, M2 की. और फिर M1, M2 की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से. और फिर हम क्या करेंगे? PQ का पर PQ फाइंड कर लेंगे लाइन डिस्टेंस फार्मूले से. और आखिर में शो ये करेंगे कि जो M1, M2 हमने फाइंड की है वो PQ के हाफ है. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड midpoint of R and P, that is M1. M1 is equal to M1, and we know the formula of midpoint. I write here the formula of midpoint is x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2. Now PR x1 is 4, x2 is -8. 4 plus -8 divided by 2. I am applying midpoint formula. Comma y1 plus y2. Here you can see y1 plus y2. 6 plus 2 over 2. Now here M1 4 minus 8 minus 4 comma 2. 6 plus 2 8 over 2. And we get M1, that is when we divide -4 divided by 2 and 8 divided by 2, here I get -2 comma here I get 4. Now I find M2. क्योंकि अगर हम M1 और M2 फाइंड करेंगे तभी हम M1 M2 लाइन फाइंड कर सकते हैं, M1 M2 की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. तो इसलिए मैं पहले M1 M2 फाइंड कर रहा हूँ. और ये क्वेश्चन में गिवन है कि M1 M2 क्या है? मिड पॉइंट्स है किसके? पी आर के और क्यू आर के. नाउ M2 इज इक्वल टू M2. ये किसका मिड पॉइंट है? क्यू आर का. तो हम पॉइंट्स लेंगे क्यू आर के. x1 होगा -2, x2 होगा -8. -2 प्लस -8, here I get -8 divided by 2 comma and y1 y2 -6 plus 2 -6 plus 2 divided by 2. M2
is equal to m2. Here we write m2 two times, because in formula we write m is equal to x comma y is equal to m. यहाँ पर x का कंपोनेंट होता है, ये y का कंपोनेंट होता है. Now -2 plus -8 is equal to -10. -10 divided by 2, here we get -5. -6 plus 2 we get -4. -4 divided by 2 we get -2. And these are 2 points m1 m2. Now we have to show that the length of m1 m2 is half of pq. तो सबसे पहले we have to find m1 m2. m1 m2 mod. We apply here distance formula. I write here distance formula, that is x2 minus x1 mod square plus y2 minus y1 mod square. So I apply here distance formula. x2 m1 m2 is here, m1 is here, m1. Now x2 is -5, x1 is -2. So here -5 minus -2 mod square plus y2 -2 minus 4 mod square -5 minus plus 2 mod square plus -2 minus 4, we get -6 mod square -5 plus 2 -3 mod square plus -6 mod square whole square. You know that mod change the value of negative into positive. जो mod है वो क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है. सो +3 का जो स्क्वायर आएगा या -3 का भी स्क्वायर ले लें तो वो भी क्या आता है, आपके पास 9 आता है. -6 स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 36 आता है. स्क्वायर रूट 36 plus 9 you get 45 square root. Now 45 स्क्वायर रूट. 45 स्क्वायर रूट का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम इसको सोल्व कर सकें. m0 3 1 दा 3 15 3 5 दा 15 3 5 दा 15. तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट. ये आपके पास क्या है, m1 m2 मॉड स्क्वायर. और ये जो आपके पास ये पेयर बन रहा है ये क्या आएगा, बाहर आ जाएगा. 3 × 5 स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास, m1 m2 मॉड आ जाएगा आपके पास. तो अब हमने शो क्या करना था कि जो m1 m2 मॉड हमने फाइंड कर लिया है, डिस्टेंस इसकी लेंथ फाइंड कर ली है जो कि है 3 × 5 स्क्वायर रूट, वो PQ के हाफ है. तो उसके लिए तो हमें पहले PQ भी पता होना चाहिए कि PQ क्या है. तो हम PQ फाइंड कर लेते हैं. PQ पर भी हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे PQ की लेंथ फाइंड करने के लिए. PQ की लेंथ फाइंड करने के लिए तो ये है P, ये है Q. x2 minus x1, x2 है -2, x1 है 4, -2 minus 4 mod square प्लस -6, फार्मूले का क्या है फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे. ये क्या है +6 है तो -6 आ जाएगा mod square. -2 -4 आपके पास क्या आएगा, -6 mod square. -6 क्या आएगा, -12 mod square. ओके, नाउ PQ mod is equal to -6 mod square 36 and 12 mod square is equal to, you know that 144 square root. 36 plus 144. 36 plus 144 is equal to 180. So I write 180 square root. And 180 is not a perfect square. 180 कोई perfect square नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि हम इसे मज़ीद सोल्व कर सकें. तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ इसका 180 का. तो here 180, 2 9 the 18 0, 2 4 the 8, 10 2 5 the 10, and 3 1 the 3, 15 3 5 the 15, 3 5 the 50.
तो 180 किसके इक्वल आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास पेयर्स बन रहे हैं। तो क्या आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट। जब आप इनके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 स्क्वायर रूट। हेयर यू गेट 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये आएगा आपके पास पी क्यू मॉड। आपने क्या शो करना था कि जो m1 m2 है वो किसका हाफ है 1/2 पी क्यू के। m1 m2 की जो लेंथ है वो किसके है 1/2 पी क्यू के हाफ है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ पी क्यू का हाफ लेता हूँ, तो देखते हैं वो m1 m2 के इक्वल आता है या नहीं। जब मैं पी क्यू का हाफ लूँगा तो वो आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। मैंने बोथ साइड पर 1/2 से डिवाइड कर दिया है। 2 1 द 2, 2 3 द 6, here you get 3 into 5 square root, here you get 1/2 pq mod. Now you can see 3 into 5 square root, that is equal to m1 m2 mod. So you can write here 1/2 pq mod is equal to m1 m2 mod. तो यही तो हमने शो करना था। मैं अगेन स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्वेश्चन की ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल जो गिवन है पी क्यू आर हैं। हमने क्या करना है शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कौन सी लाइन सेगमेंट को पी आर और क्यू आर के जो मिड पॉइंट्स हैं उनकी लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है ज्वाइन कर रही है। उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है पी क्यू के हाफ के इक्वल है। तो हमने क्या असल में फाइंड करना था m1 m2 की लेंथ फाइंड करनी थी और ये शो करना था कि पी क्यू की लेंथ के वो हाफ है। लेकिन हमें तो m1 m2 ही नहीं मालूम, तो हम m1 m2 कैसे मालूम करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर। मिड पॉइंट फार्मूला किस तरह से लगाएंगे पी आर और क्यू आर। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 के। तो हमने m1 m2 फाइंड कर लिया। असल में तो हमने लेंथ फाइंड करनी थी, फिर हमने उसकी लेंथ फाइंड की डिस्टेंस फार्मूले से और हमने क्या फाइंड किया उसे 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट। लेकिन हमने शो तो कुछ और करना था। क्या शो करना था यहाँ पर हमने ये शो करना था कि वो जो लेंथ है m1 m2 वो पी क्यू के हाफ है। तो वो शो करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया पी क्यू की भी लेंथ हमने फाइंड की। कहाँ से डिस्टेंस फार्मूले से। तो पी क्यू की भी लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब पी क्यू की तो लेंथ फाइंड हो गई है, लेकिन हमने शो तो कुछ और करना था। तो क्या शो करना था यहाँ पर हमने ये शो करना था कि पी क्यू का हाफ उस m1 m2 के इक्वल है। तो ये शो करने के लिए मैंने बोथ साइड पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया। और जब हमने डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं ये जो आंसर आया वो m1 m2 के इक्वल था, सेम था। इसलिए इस जगह मैंने क्या लिखा m1 m2 लिखा। तो इससे ये शो हो गया कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है किसके मिड पॉइंट्स को पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या है पी क्यू के हाफ है। थैंक यू।